Hello, guys. Welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Tomorrow, you have a very important exam, that is AIL LET, Army Institute of Law, Mohali. Yes, it is an important exam. It is a very important day, and I wish all of you all the good luck and a very confident and peaceful time before, during, and after the exam. In today's video, we are going to discuss some of the very important things like how to attempt the exam. We are also going to discuss how to keep yourself very calm, at peace, confident, and at the very same time very focused, because these are the words that you have to keep in your mind, in your vocabulary, till you are able to give the exam, right? Let's get started. Whatever you're feeling, if you're not feeling good, if you're feeling heavy, if you're feeling whatever, you can write down in the comments. I promise you, I will reply. And you can also send me a message on Instagram. I'm there by the name I'm Lockery. Once you're done with the exam, do come back and share your experience. Okay, and let's get started with today's video. And yeah, do subscribe to our channel, because for law students also, and once you become a lawyer, we are going to help you then also, right? So we are going to be there in your journey of being a lawyer as well as in the journey of life. Okay, so yes, what is the pattern of the exam? So you have your four sections. I hope you have done maths, because sometimes maths is there, right? And sometimes it is not there. So you have to cover the important topics. And as I've told you in the previous videos also, to cover maths, a bit of it, right? Now, percentage, average, ratio, proportion, all of it. So 50 marks, you have your mental ability and logical reasoning, general knowledge and current affairs 50 marks, law aptitude 50 marks, general English 50, total is 200 marks. There is no negative marking, therefore you're going to attempt the entire exam. It means all the 200 questions, you know the answer, you don't know the answer, you have to attempt the exam. Okay, the medium of the exam is English. Okay, and the exam happens online. That is, you're going to visit the center, you're going to sit in front of a desktop in a center, and you're going to attempt the exam. Okay, so CPT mode, I hope you have practiced from our mock tests. And how to attempt the exam, you have to treat the entire paper as one unit. You don't have to look that, okay, for English 30 minutes, for maths 10, for 10 for logical. No, your entire paper is one unit. You have to very quickly, in a very focused manner, you have to pick up each and every question and solve it. Whichever questions you're not able to solve, you think that, oh, this is very lengthy, taking time more than usual, you can move on to the next question. The questions you don't know, you can leave in the first round, and in the second round you can come up to these questions. So in the first round you're going to solve the 100% questions of which you know the answer, जिसको देखकर आपका दिल खुश होगा कि वाह क्या. And then in the second round you are going to solve the questions of which you don't know the answer, where you have to do the guesswork, go through the options. When you have to do the guesswork, the best option is to read the question carefully, cross out options कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये दोनों में से लग रहा है अच्छा ये हो सकता है, राइट? यस, इतनी अकल लगानी है जो नहीं आता उस पे भी, ठीक है? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. यू हैव टू सॉल्व ऑल द 200 क्वेश्चंस. एंड इवन इफ द टाइम इज लाइक वो कह रहे हैं कि 5 मिनट रह गए, जो करना कर लो, ठीक है, तुम सब ए मार्क करके आ जाना, बट ये सिचुएशन नहीं आएगी. यू हैव टू इंश्योर यू आर एबल टू मैनेज टाइम. इवन टुडे यू कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे बिना कोई पेपर नहीं देने जाए तो बेटर है. Okay, section wise tips and tricks. While you're reading the comprehension, please go through the questions for 10 to 20 seconds. फटाफट से पूछ क्या रहे हैं, and then you read the passage. Now what will happen, you'll have an idea कि क्या पूछ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप पैसेज को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, लीगल रीजनिंग में असेंशियल्स को अच्छे से पढ़ना है. मैथ्स और लॉजिकल में नीट कैलकुलेशन करनी है कि अगर वापस आके आपको कैलकुलेशन पिक करनी पड़ती है तो आप कर पाओ. करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिमाग में बोल देना है, फिर ऑप्शंस पढ़नी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? एंड यस, नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर एक क्वेश्चन यूजुअल से ज़्यादा टाइम ले रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दैट क्वेश्चन इन द सेकेंड राउंड. क्या होता है जब आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देते हो तो जो बहुत ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हड़बड़ी में करने पड़ते हैं. बट जब आप 2 राउंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 2 राउंड में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत. और इसकी प्रैक्टिस भी करके जाओ आप, ठीक है?
Now, next is there are going to be questions of which you don't know the answer, and there are going to be questions of which you don't know the answer, of which you know the answer, which you don't know the answer. So बहुत बार क्या होता है जब हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसका हमें आंसर नहीं पता, हम बहुत डर जाते हैं, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ मेंटालिटी ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज स्कूल के अंदर हर कुछ आता ही होता है, मोस्टली एक आधा क्वेश्चन होता है 1 मार्कर 2 मार्कर कि नहीं आता है, 6 मार्कर नहीं आता, नहीं तो मोस्टली पेपर आता है, तो दिल ना 6 7 8 मार्क्स गंवाने के लिए ही बना है, उससे ज़्यादा तो डर ही लगता है, राइट? दैट मेंटालिटी कम्स फ्रॉम देयर, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में वो बैठा हुआ है कि अगर हमें नहीं आता ना तो फियर जनरेट होता है। बट यहाँ पर अपने आप को आज ही समझा कर जाना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये स्कूल एग्ज़ाम नहीं है। मेरे को एक प्रिस्क्राइब बुक नहीं दी गई है कि ये पढ़ जाओ, इसके लिमिट से ही आएगा। लिमिटेशंस हैं, बट लिमिटेशंस के बाहर से भी कुछ आ सकता है, विच इज़ फाइन, आई एम ओके विद इट। मुझे फोकस करना है जो मुझे आता है उस पे। Again, don't stick to the questions. If a question is taking more than usual time, skip. वापस आ जाना, टाइम बचेगा for sure. If the paper is difficult, it is difficult for everyone. If it is easy, it is easy for everyone. I know a lot of you might have given Punjab University 5 years LLB entrance exam, and this year it was a blast. It was something which was completely, वो तो अपनी बाउंड्रीज ही भूल गए, ठीक है ना? ये बाउंड्री थी, वो तो यहाँ पे चले गए, वो कहते कोई बात नहीं, LLM के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो वो अपने माइग्रेशन के एग्जाम में पूछते हैं। बट देयर आर स्टूडेंट्स हु विल क्लियर द एग्जाम, ठीक है, हु स्टेड काम, जितना नॉलेज था उसका यूज़ करते हुए वो एग्ज़ाम देकर आए। देखो, उस एग्ज़ाम में जो कामली नॉलेज का यूज़ करके एग्ज़ाम देकर आ गया वो जीत जाएगा। बट जो सोचने बैठ गया अरे कट ऑफ तो 70 जाता है, अरे कट ऑफ तो 130 जाता है, मैं यहाँ पे बात करूँ तो 130 प्लस एम करना है आपको, ठीक है, मैं कैसे करूँगा? देखो यार, व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम, वन मोर थिंग, वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, ये बहुत पूछा जाता है, हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड आई अटेम्प्ट? मैंने बोल दिया ना, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वहाँ पर बैठकर ये नहीं दिमाग लगाना कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 के 200 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर आने हैं। वहाँ पर अगर आप कट ऑफ पे दिमाग लगाने बैठ जाओगे, इट इज़ शीर वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपका एम क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपने अपने आप को क्या सिखा करके जाना है कि कल जो मेरा माइंडसेट है वो पीस एंड काम, ठीक है ना, वरी नहीं होनी चाहिए, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, मैंने जितना पढ़ा है उतने में ही मुझे करना है। यस, यू हैव टू बी पीसफुल विद इट। आप नहीं सोच सकते वो टॉपिक कर लेता, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो किया वो किया, अब इसके बेसिस पे ही मुझे पेपर देकर आना है। 12 साल तो हर कोई पढ़ाई करके आया ना, 12th पास करी, नर्सरी से लगे हुए हो, कोई यूकेजी एलकेजी करके आया, कोई कहीं से स्टार्ट हुई है ना, 1st to 10 किया, 12 साल तो है ना, वो नॉलेज भी तो यूज़ आएगी। तो आपने पीस और काम रखना है। आई एम श्योर 10 मार्क्स तो पीस और काम के मिल ही जाएंगे आपको एक्स्ट्रा, पक्का, पता चल जाएगा एक्सपीरियंस से। फोकस एंड कॉन्फिडेंस, जब आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी आपका फर्स्ट इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ ये आंसर है, फर्स्ट इंट्यूशन एग्जाम में बिल्कुल ठीक होगी। नॉलेज को भूल जाओ, forget everything. Right now, if you think that I've forgotten everything, it is very good, very very good. Let your intuition take over, let the brain nerves function themselves, and they are going to give you the answer. I promise, हो जाएगा, एग्जाम में हो जाएगा। अगर अभी वरी करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। You're forgetting everything, say brain very good, you forget everything, because we have, look, इससे easy question papers क्या हो सकते हैं? थ्योरी वाले पेपर में भूल गए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, पर अगर मेरे से पढ़ोगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं आने दूंगी मैं थ्योरी वाले पेपर्स में, ठीक है, वो हम एज अ लॉ स्टूडेंट पढ़ना मेरे से। बट अभी क्या है, MCQ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर मेरे सामने है, ठीक है ना, तो अगर मैं भूल भी गया तो अरे मुझे देख के तो याद आ ही जाएगा, इतना आ जाता है, ठीक है, वेरी गुड। ब्रेन कह रहा है मैं सब भूल रहा हूँ, से ब्रेन ओके फाइन गुड वेरी गुड, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, लेट माई इंट्यूशन वर्क, ओके, आई प्रॉमिस योर इंट्यूशन इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल। जितना पढ़ा है उसमें इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी, ओके। वेन एवर पैनिक, वरी, एंग्जाइटी, इरिटेशन इज देयर, टेल योर सेल्फ दैट आई हैव टू गिव। लॉगरी दीदी ने क्या बोला, अपना 100% देना है, मुझे पीसफुल रहना है, मुझे काम रहना है, मुझे तो फुल फोकस करना है और कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी इंट्यूशन को काम करने देना है, बस, सिंपल, ईजी। एंड अगर पिछले वाले एग्जाम का डर सताए कि अरे उसमें ये हो गया था,
तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हैपेंस, मे बी वो मेरे लिए बना ही नहीं है. माई डेस्टिनेशन इज समथिंग एल्स. आई हैव अ बेटर डेस्टिनेशन एंड आई कैन गारंटी यू दिस इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन इफ यू मेक इट हेयर. राइट, नहीं होगा तो कुछ और होगा जिंदगी में. यू नो वॉट हैपन्स आफ्टर 12th, आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. अब मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, सीन सो मेनी स्टूडेंट्स. 5.5 साल तो मुझे यूट्यूब पे हो गए, उससे पहले ऑफलाइन. ठीक है, तो आई टेल यू वन थिंग, 12th के अंदर ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये कॉलेज नहीं मिला ना तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. डिप्रेशन हो जाता है, उस डिप्रेशन चलता है 3-4 साल. वेल, मैं आपको एक बात बताऊँ, आई सीन सो मेनी स्टूडेंट्स गोइंग टू गुड कॉलेजेस एंड नॉट मेकिंग इट, दैट नॉट डूइंग वेरी वेल. आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स गोइंग टू बस ऐसे ही नॉर्मल कॉलेजेस एंड डूइंग रियली वेल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हार्डवर्क. अगर तुम हार्डवर्क करना बंद नहीं करोगे ना जिंदगी भर, यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट. ये मैंने खुद की जिंदगी में देखा है. पता है ये क्या होता है, जब 30s में आप देखते हो ना, मतलब 20s में आपको लगता है दैट पर्सन वेंट टू दिस इन दिस कॉलेज एंड यू लाइक वो हो ये वो. And then eventually in your 30s when everyone kinds of gets settled and married and has children, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ये कर लिया, then you get to see कि कौन कैसा settle हुआ है. And then you realize कि भैया सेटल हर कोई हो जाता है. कईयों को 12th में ही सेटलमेंट मिल जाती है, ठीक है ना, मेहनत करके कि यहीं से हो गया. कई 12th में, ग्रेजुएशन में भी थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है, फिर ग्रेजुएशन के बाद भी करनी पड़ती है, बट सेटल हर कोई हो जाता है. हर कोई नहीं होता, जो हार्डवर्क करता है वही होता है. ठीक है ना, और जो जितनी जल्दी हार्डवर्क करता रहता है, जितनी जल्दी स्टार्ट कर देता है, उतनी जल्दी वो सेटल हो जाता है. ठीक है, और फिर जितना हार्डवर्क वो करता रहता है उतना वो ऊपर चढ़ता रहता है. देयर आर पीपल हु गिव अप, ठीक है, आपको जॉब में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मुझे अब इससे आगे जाना ही नहीं है, मैं अक चुका हूँ. तो हार्डवर्क इज व्हाट कीप्स ऑन गोइंग. मतलब कहने का मतलब ये कॉलेज मिले ना मिले, अगर आप हार्डवर्क करते रहते हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता. मेरी गारंटी है, ये कुछ ना कुछ इतना बड़ा करोगे, लोग भी ऐसे मुड़ मुड़ के देखेंगे कि अच्छा. सीरियसली, आई सीन सो मेनी स्टूडेंट्स. मैंने इतने बच्चे देख लिए सेटल होते हुए कि एक ही चीज़ मुझे निकला है कि जो बच्चा गिव अप नहीं करता है, जो कहता है ज़िंदगी मैं तुझे जीऊँ, वो सही में जीता है फिर. और ऐसा मतलब फाड़ू काम करता है ना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, कि भाई मैं भी देखती रहती हूँ, अच्छा इस बच्चे ने कर दिया. बट हाँ, मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ गिव अप नहीं करना. ये एग्ज़ाम क्लियर होता है ठीक है, नहीं होता डिप्रेशन में नहीं जाना बेटा, डिप्रेशन में नहीं जाना. सैड नहीं होना, ठीक है, लर्न करो कि मेरी ये गलती थी, मैंने ये नहीं किया, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, बट सैड नहीं होना. फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों की फ़ोटो देखकर कि यार इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, सैड नहीं होना, गिव अप नहीं करना. तुम्हारी डेस्टिनेशन बेटर है, क्योंकि देखो ना, इसने यहाँ तक हार्डवर्क किया और इसको इसकी डेस्टिनेशन मिल गई. ठीक है, अब तुम्हें और हार्डवर्क करना है. ठीक है, तुम्हारी बेटर डेस्टिनेशन होगी, ये मैं गारंटी देती हूँ, सच में. ठीक है, तो इट्स जस्ट एन एग्जाम, हो गया नहीं हुआ तो हमारे लिए कुछ बेटर है, क्योंकि हम हार्डवर्क तो करते रहेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम तो लॉगरन है, पक्के लॉगरन है. राइट, वेन एवर इन अ प्रॉब्लम आस्क योरसेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन डू. ये तो जिंदगी का फॉर्मूला है, एग्जाम पे भी लगाओ, जिंदगी पे भी लगाओ. जब भी जिंदगी बहुत बुरी चल रही हो, सोचो यार क्या बेस्ट कर सकता हूँ, वो करो. हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ हैप्पी. Yes, I do this. Ask yourself this question. How can I make myself happy? What would you like today? मन बताओ क्या करना चाहोगे? Would you like a coffee? But वहाँ पे कॉफ़ी नहीं हो सकता. Ask yourself what best I can do right now. क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, वो बेस्ट करो. जब हमें दूसरों को ज्ञान देना होता है, हम कितना अच्छा ज्ञान देते हैं ना, मस्त, बिल्कुल काउंसलर की तरह. साइकोलॉजी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इतना ज्ञान दे सकते हैं हम, है ना. But when it comes to ourselves, we are like, oh, so sad. My mom always tells me that you're so big Gyani for others and me, but when a problem comes on you, you forget. Yes, that's the reality. वो ज्ञान मुझे खुद को भी देना पड़ता है कि ओके फाइन, व्हाट बेस्ट यू कैन डू, व्हाट हाउ कैन आई मेक यू हैप्पी. सो व्हाट बेस्ट आई कैन डू, दिस इज इन द एग्जाम. एंड व्हेन यू कम आउट एंड यू फील बैड और समथिंग, आस्क व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, और हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ हैप्पी. बिकॉज येस, मुझे ही मेरी टेंशन लेना है, मुझे खुद को खुश रखना है, मुझे खुद को फोकस रखना है, मुझे खुद की सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. राइट, सो feel motivated right now. I'm going to discuss something very very important today. Before the exam, what you should do to keep your mindset good. Mindset बहुत ज़रूरी है,
और हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए एक अच्छा एग्ज़ाम देने के लिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखें, क्या करें बिफोर द एग्ज़ाम? विजुअलाइजेशन, ठीक है। इमेजिन करो आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो विजुअलाइजेशन, ठीक है। दूसरा एफर्मेशंस, जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है मॉक टेस्ट के साथ मैं अभी प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर नहीं डली हुई बंडल में तो बता देना। एफर्मेशंस करनी है, वो सुननी है एफर्मेशंस, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। माई एग्जाम इज गोइंग, माई एग्जाम वेंट रियली वेल, और आई एम गिविंग द एग्जाम, इट वेंट वेल, आई गेव द एग्जाम। वैसे प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होनी चाहिए मैनिफेस्टेशन एफर्मेशंस। माई एग्जाम वेंट वेल, या my exam is good, exam is good, exam was good नहीं लिख सकते, exam is good because present में my coach has taught me present में बनाओ, it is difficult I know sometimes, exam is good, um, paper was amazing, yes हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, very good, ठीक है। um, paper amazing, easy, पेपर इज ईजी, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, लाइव में बनाऊंगी। पेपर इज ईजी, पेपर इज अमेजिंग, ईजी, एंड आई एम स्कोरिंग अबव कट ऑफ मार्क्स। आप अपना AIR भी मैनिफेस्ट कर सकते हो यहाँ पर कि मेरा AIR इतना आया है। एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, राइट, वॉट एवर टॉपिक्स दैट आई कवर्ड वर देयर इन द एग्जाम, टॉपिक्स दैट आई कवर्ड, ओनली द टॉपिक्स आई कवर्ड were there in the exam, came in the exam, are in the exam, ठीक है। प्रेजेंट में are in the exam, topics I covered are in the exam, only the topics that I covered आर इन द एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें, अब तुम्हें लग रहा होगा क्या स्टूपिड बातें कर रही है ना, ये तो बेवकूफ़ है, ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ, पर तुम भी ये थोड़ी बेवकूफ़ियाँ कर कर जाना बिफोर द एग्जाम, यू आर गोइंग टू फील सो गुड। आई मीन एफर्मेशंस मुझे नहीं पता था इतना अच्छा फील करवा सकते हैं बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम, लाइक बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, टॉक टू योर सेल्फ। इवन ये सेल्फ टॉक जो है आप बिफोर द एग्जाम भी कर सकते हो कि यार कोई बात नहीं, मैं एक लॉगरियन हूँ, यू नो, क्या कॉन्फिडेंस देता है आपको, क्या चीज़ है जिससे आपको बड़ा ही किक मिलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये, क्या कुछ तो होगा यार, कुछ तो छोटी मोटी चीज़ होगी, ना यार मैं वो कर सकता था, ये भी कर सकता हूँ, क्या ही बात है, राइट। ड्यूरिंग द एग्जाम टेल योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ वेरी मच पेप टॉक बिफोर द एग्जाम। जब बैठे हो ना और टाइम वेटिंग वाला टाइम होता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट भी है, 10-15 मिनट भी है, टेल योर सेल्फ, अरे यार कुछ नहीं होता, आई एम गोइंग टू डू इट, इट इज़ फाइन, लॉगरी दीदी ने बोला था, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, अपना 100% देता हूँ ताकि बाद में गिल्ट फील ना हो, ठीक है, बिल्कुल फोकस है, कामली देता हूँ। अगर नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बढ़िया होगा गाइज, आई कैन गारंटी यू बिकॉज बीइंग अ काउंसलर आई हैव सीन सो मैनी लाइव्स एंड बीइंग अ लॉयर ऑल्सो, राइट। अगर तुम सच्ची में, अगर तुम मतलब गिव अप नहीं करते ज़िंदगी में, अगर तुम हार्ड वर्क करते रहते हो, मैं कहती हूँ जिन जिन का मतलब NLU में एडमिशन हुआ है तुम उनको भी पार कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को करते देखा है, ठीक है, आई एम नॉट लाइंग, सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। तो अगर ये हो जाता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता बहुत बढ़िया बात है, सब चीज़ों में बहुत बढ़िया बात है, बस मैं गिव अप और हार्डवर्क नहीं छोड़ने वाला हूँ, सिंपल, मेरा लाइफ का फंडा ये है, सेल्फ टॉक, ठीक है ना। अगर तुम कह देते हो ना हाँ अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वैसे ही दिमाग कहते हैं अरे इसको तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है नहीं है तो करता रहे अपना जो करना है, तो टेंशन नहीं होता है। आफ्टर द एग्ज़ाम बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अरे नहीं होगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। देखो घर वालों को टेंशन होगी, उनके तो 1-2 बच्चा है, ठीक है ना, उनको टेंशन है कि भैया उस पड़ोसी के बच्चे का हो गया, मासी के बेटे का हो गया, बुआ के बेटे का हो गया, मामा का हो गया, चाचा का हो गया, ताया का हो गया, मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ या मेरी बेटी क्यों नहीं। उनका टेंशन तो ज़बरदस्त है, ठीक है ना, क्योंकि तुम उनका प्रोजेक्ट हो और उनका प्रोजेक्ट फेल हो ऐसा कोई भी नहीं चाहता है, बट उनको भी लाइफ में पता चल जाता है कि मेरा प्रोजेक्ट इतना ख़राब भी नहीं है, क्योंकि वो गिव अप और हार्डवर्क नहीं छोड़ने वाला है। वो उनको कब पता चलेगा, तुम्हारे 30s में, ठीक है, उससे पहले अगर तुम्हारा ऐसा ही ऐसा चल रहा है तो वो भी ऐसा ऐसा उनका दिमाग चल रहा है, ठीक है ना, विच इज़ फाइन, इट्स ओके, दे हैव टू वरी। पेरेंट्स वरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तो उनकी वरी देखकर रोना धोना नहीं, उनकी वरी से मोटिवेशन लो कि हाँ मुझे गिव अप और हार्डवर्क करना है। इंस्टेड यू कैन टॉक टू देम ऑल्सो कि यार देखो मेरी जो काउंसलर है वो ये बोलती है कि गिव
अप और हार्डवर्क जो नहीं छोड़ता है ना, वो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करता है। और तुम्हारे माँ बाप भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्टोरी निकाल लाएंगे कि वो फलाना फलाना बच्चा था, उसकी उस कॉलेज में एडमिशन हुई थी, आज की डेट में वो ये कर रहा है। सही बात कह रहा है, अगर गिव अप नहीं करेगा, हार्डवर्क करेगा, तो यार मेरा बेटा भी कुछ बन जाएगा, मेरी बेटी भी कुछ बन जाएगी। तो सबसे पहले उनके साथ उनको देखकर दुख होता है, बट आपको उनसे मोटिवेशन लेने। और अगर वो तुम्हें ताने मारते हैं कि अरे क्या नालायक है ये वो, मारने दो, कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स। जिस दिन तुम सक्सेसफुल होगे वो सबसे पहले आएंगे तुम्हारी सक्सेस में नाचने, ठीक है ना, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स के दुख से मोटिवेशन लेना है, दुखी नहीं होना उनके साथ, इंस्टेड उनको समझा सकते हो। समझने वाले टाइप वो हैं तो समझा दो, अगर समझने वाले टाइप नहीं है, उनको लगता है अरे हम ही सब ज्ञानी है, तो छोड़ दो, ठीक है। सेकेंड चीज, अगेन बैक टू टॉक, गिव अप नहीं करना, हार्डवर्क करना। बेस्ट ऑप्शन क्या है वो देखना है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहा, मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, एंड वहां पर आप बात कर सकते हो, राइट। वो लोग गाइस, सिंपल फंडा जो मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, गिव अप नहीं करना और हार्डवर्क करते रहना। यार कुछ ना कुछ इतना बड़ा अचीव कर जाओगे, मुझे मैसेज करके बोलोगे अरे हेलो हम ये बन गए हैं, एंड आई गेट दोज मैसेजेस, आई ट्रूली गेट दोज मैसेजेस। एंड बच्चे पता है क्या बोलते हैं, दी आपने हमें ये बोला था, मुझे याद भी नहीं मैंने उनको क्या ज्ञान दिया था, कुछ इसके अराउंड ही दिया था ज्ञान। माई कजन्स लाइक जो मेरे से छोटे हैं 10-10, 11-11 साल, वो कभी मिले होंगे मुझे, राइट। सो वन ऑफ माई कजन्स, शी इज़ रियली वेल सेटल्ड एंड शी वॉज नॉट एबल टू मेक इट टू अ गुड कॉलेज इन द बिगिनिंग, ओके। तो हर कोई बोल रहा था अरे होता ही है कि फलाना फलाना बच्चा तो उस कॉलेज में है, तुम्हारी इसमें हुई। एंड शी मेट मी ड्यूरिंग हर ड्रॉप ईयर, and it was about her exam was about to take place, and she came in and she told me it's very difficult, her koi tane marta hai, very very difficult, my dad is the only one who's with me. And I gave her this gyan, and she cracked a very big college ka exam in her second attempt, and till today she is after that she has done cracked so many exams on that very agenda, this very formula. And she comes back one day, she's an officer now in army, and she came back and told me, you know what, you told me this, and this is what I always kept as my agenda. The day I used to feel everything is over for me, I used to just keep these two words in my head, that is give up or hard work nahi chhodna, give up nahi karna, sab kuch ho jayega, you told me. And today she's an officer, and she did not make to a good college in the beginning, धीरे 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 in life she did. एंड उसके घर वाले अपने आप साथ में हो गए, जो रिश्तेदार ताने मारते थे वो उसको फ़ोन करते, अरे तुम अपना कार्ड दे सकते हो क्या, हमको कैंटीन से कुछ लेना है। सो येस, अगेन आर्मी स्टोरी फॉर आर्मी लॉ स्टूडेंट्स, राइट। सो येस, डोंट गिव अप, आई प्रॉमिस यू, द डोंट गिव अप, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, वर्क हार्ड। कैसे क्या करना है मेरी हेल्प ले लो, आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड या all the very best. I know बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया. I'm going to keep this video as it is, give you the ज्ञान, because you need that motivation. I read a lot of students in yesterday's video have written that डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, इतना डर नहीं लगना है. Just give yourself this talk again and again. Positive mind से जो मैंने बोला है ना, उसको repeat पे सुनते रहो, बढ़िया एग्जाम हो जाएगा. Bye bye. Do come back and tell me एग्जाम कैसा गया on Instagram. आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो logrin@gmail.com, ठीक है। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई हैड such a great time with you guys, posting the videos, solving your queries on Instagram through email. Thank you so much, and yeah, do share your experience tomorrow. Bye bye, all the way best, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है.